sin offering, نادانستہ خطا کی قربانی. ہبریو میں لفظ ہے ہٹاٹ. ہٹاٹ کا مطلب ہوتا ہے تعلق قائم کر لینا، یگانگت کا رشتہ. خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، دوبارہ صلح کر لینا، یہ قربانی تھی. یہ قربانی ہر انسان کی مالی حیثیت کے مطابق ہوتی تھی. جو سن آفرنگ تھی، کوئی شخص کتنا مالدار ہے اس کے مطابق یہ قربانی ہونی چاہیے تھی. کاہن چونکہ انسان تھے کاہن. آج بھی اگر کوئی شخص کسی بھی ایریے میں، چاہے عبادات میں لیڈر ہے، ہولی اسپرٹ، غیر زبانیں بولتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سارا کچھ، کوئی انسان کامل نہیں ہے پوری دنیا میں. ہر شخص سے خطا غلطی ہوتی ہے. اس لیے یہ جو کاہن تھے، کئی بار ہم اتنے بڑے لفظ بول دیتے ہیں، انسان کے لیے واجب نہیں ہے. اسی لیے ہمیں جو ہیں وہاں پر ہی رہنا چاہیے. سو یہ جو قربانی تھی، سن آفرنگ، خطا کی قربانی، یہ ہر انسان کی مالی حیثیت کے مطابق ہوتی تھی. جو کاہن تھا، اگر اس سے غلطی ہوتی تو اس کو بیل جو ہے یہ قربان کرنا ہوتا تھا. اگر کوئی لیڈر ہے، سردار ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، تو اس کے لیے بکرے کی قربانی کرنا ضرور ہوتی تھی. عوام جو ہوتی تھی ان کے لیے بکری، فیمیل گوٹ کے لیے لکھا گیا ہے کہ اس کے لیے فیمیل، عوام کے لیے فیمیل گوٹ ہونی چاہیے. اور فیمیل گوٹ کیوں؟ میں اس کی ریسرچ کر رہا تھا کہ باقی ساروں کے لیے ہے، لیکن عوام جو ہے یہ فیمیل گوٹ کا کیوں ہے؟ اس کی وجہ سبمیشن ٹو گاڈ. چونکہ جو کاہن ہوتا تھا اس نے قربانی آپ کے لیے چڑھانی ہے، خدا کے لیے. تو جو عوام ہے وہ سبمیشنز کے لیے تھی، خدا کے سبمیشن ہونا. اس لیے آج بھی وہ عورت، وہ وائف جو ہسبینڈ کی سبمیشنز میں ہے، لیکن ہسبینڈ پہلے نمبر پر بندے دا پتر ہونا چاہیے. اگر وہ بندے دا پتر ہے تو وائف انڈر سبمیشن ہے، تو یہ خدا کا قانون ہے جو باغ عدن میں بنایا گیا تھا. آج اگر لیڈیز سبمیشن سے باہر ہیں تو میرے عزیزو، اس کی ریزن جو میل ہے، جو آدمی ہے، وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ چکا ہے جو اس کو عدن میں دی گئی تھی. اگر آدمی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا تو پھر آٹومیٹکلی عورت اس گھر کو چلائے گی، عورت اس آدمی کو چلائے گی، عورت اس خاندان کو چلائے گی. پھر آتا ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ عورت انتظام کرے؟ جی، اگر آدمی کمزور ہو چکا ہے اور اپنی ذمہ داری دل سے پوری نہیں کر رہا تو پھر عورت کو کرنا چاہیے. اس لیے یہ گوروں نے بھی لیڈیز پاسٹر بنا دی تھی. ان کو پتا تھا بھائی صاحب سوٹے بھی لاندے نے، دوسرے پاسے بھی جاندے نے، ستے رہندے نے، ایک کوئی کام کر کے تھک جاندے نے. آدمی کے لیے یہ تھا کہ وہ گھر کو چلائے. اس لیے عورت کو خون کی سزا دی گئی ہے. یہ جو لیڈیز لکھا ہے نا، فیمیل بکری کی قربانی جو ہوتی تھی، سبمیشن ٹو گاڈ، وہ یہ تھا کہ تو نے خامند کو، جسے تو خدا کہتی ہے، لارڈ کہتی ہے، آقا کہتی ہے، اس کی سبمیشن میں تھا. اور غریب عوام جو تھی ان کے لیے کمریوں یا کبوتر کا جوڑا ہوتا تھا. سو چونکہ ہر ایک کی حیثیت کے مطابق سن آفرنگ ہوتی تھی. اور پانچواں تھا جو نہایت مفلس فقیر لوگ جو ہیں، کئی بار یہ ہے یہ مانگنے والا ہے، اس کو بھی قربانی کرنی پڑتی تھی. جو فقیر لوگ تھے ان کے لیے یہ تھا ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا. سو ایفا کا 10واں حصہ آلموسٹ 3 کلو میدا جو ہے وہ اس کو لانا ہوتا تھا. نادانستہ خطائیں وہ تھیں جن کاموں کو خدا نے کرنے کے لیے منع کیا ہے اور پھر بھی وہ انسان سے ہو جائے. یہ وہ غلطیاں، یہ خطائیں تھیں جن کے لیے خدا نے منع کیا ہے، پھر بھی ہو جاتی ہیں. اس کے لیے یہ قربانی ٹھہرائی گئی تھی، سن آفرنگ. اخبار 4 باب لیویٹیکس چیپٹر 4 پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی ان کاموں میں سے جن کو خدا نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے اور اس سے نادانستہ خطا ہو جائے. Say to the Israelite. کئی بار جب ہم بائبل پڑھتے ہیں ہر چیز اپنے اوپر تھوپتے ہیں کہ یہ لکھا گیا. کہا لکھا جی؟ بنی اسرائیل سے کہہ. سو اس لیے
कुछ चीजें कुछ वक्त के लिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ अंबिया के लिए, कुछ औकात के लिए, कुछ मौका के लिए थी, जो मेरे और आपके लिए नहीं है। बनी इस्राएल से कह कि अगर कोई उन कामों में से जिनको खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे और उससे नादानिस्ता खता हो जाए, और नादानिस्ता खता जो थी वो थी ना जानते हुए खुदा का हुक्म टूट जाना। आप चाहते नहीं थे, लेकिन आप कुछ कर रहे हैं जिससे खुदा का हुक्म तोड़ा गया है। वो नादानिस्ता खता थी वो, और उसके लिए कुर्बानी जरूरी थी। ना जानते हुए कुछ कह देना, ना जानते हुए किसी नापाक चीज को हाथ लग गया है, तो एक्चुअली आप ऑलरेडी मुजरम हो चुके हैं खुदा की नजर में। आप सोचते हैं हमें कोई मसला नहीं है, नो नो नो, दैट्स व्हाई क्राइस्ट को आना पड़ा है। ना जानते हुए अगर आपका हाथ किसी नापाक चीज को लग गया है तो आप एक्चुअली ऑलरेडी जुर्म की, सिन की कुर्बानी जो है वो आपने करनी है। ना जानते हुए किसी पाक चीज को छू लेना, नापाक को भी नहीं छू सकते, पाक को भी नहीं छू सकते। इसलिए यीशु मसीह ने मनसूख करने नहीं, पूरा करने आया है, क्योंकि ये पुराना अहदनामा जो मज़बा है इससे पूरा नहीं होता, इंसान जो मर्जी कर ले। ना जानते हुए किसी पाक चीज को छू लेना, ना जानते हुए कोई अमल हो जनाब से, और मॉरल लॉ, सेरेमनियल लॉ, सिविल लॉ, ये 3 लॉ जो थे ये बहुत ही जरूरी थे इस्राएल कौम के लिए। इसलिए मज़बा मेरे जो बनाया गया था, मज़बा के ऊपर ये कुर्बानियां चढ़ाकर उनका 1 साल के लिए गुनाह जाता रहता था। और अखबार 5 तरह में लिखा है, अगर कोई खुदा करे और उन कामों में से जिन्हें खुदा ने मना किया है किसी काम को करे, ध्यान से सुने, तो चाहे वो ये बात जानता भी ना हो तो भी मुजरम ठहरेगा और उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। इंग्लिश में इवन दो दे डोंट नो इट, कोई गलती आपसे आपको पता भी नहीं हो चुकी है, आप ऑलरेडी गुनाहगार है। सेवियर के बगैर नहीं बच सकती थी दुनिया। इवन दो दे डू नॉट नो इट, दे आर गिल्टी एंड विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। आपको पता नहीं आपकी गलती हुई है, आपसे कसूर हुआ है, लेकिन आप उसके मुजरम हैं। अब कैसे फिर बचे? जो जिस गुनाह का, गलती का मुझे और आपको पता भी नहीं हमसे हुई है, तो माफी भी हम कैसे मांगेंगे? इसीलिए क्राइस्ट आया है। और क्राइस्ट ने क्या कहा है? हिब्रू चैप्टर 9:22 वर्ष में लिखा है, और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं, और बगैर खून बहाए माफी नहीं। सो चूंकि चाहे सरदार, चाहे काहिन, चाहे अवाम, चाहे गरीब लोग, चाहे मुफलस लोग, उनसे कोई गलती होती थी, गुनाह उनके नाम लगा हुआ है, उनको पता भी नहीं है। इसलिए क्राइस्ट को आना जरूर है, क्योंकि ये सारी चीजें इनके लिए, भेड़ और बकरियां और बर्रे और बैल, ये सारे कुर्बान किए जाते हैं। और रोमियो 2:3-23-24 में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। नए अहदनामे में ये जब हम आयत पढ़ते हैं, तो अब पुराने अहदनामे में चूंकि ना जानते हुए, ना दानिस्ता तौर पर भी जो मुझसे और आपसे गलतियां होती हैं, ये यीशु मसीह के खून ने क्या किया है? इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से, फजल, ग्रेस, मखलसी, रिडेम्पशन, मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। यहां पर पुराने अहदनामा में खता का आपको पता है या नहीं, आप ऑलरेडी मुजरम है। नए अहदनामे में जब क्राइस्ट आ गया है, तो वो क्या कहता है? अगर मैंने और आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, तो फिर उसका फजल जो है, उसमें जो मखलसी और कफारा हुआ है, हम मुफ्त रास्तबा ठहराए जाते हैं। अगर मुझे और आपको गलती का पता है या नहीं है, यीशु मसीह को कबूल किया है, तो मेरे अजीजों, वो गुनाह हमारे ऊपर लागू नहीं होते। सिन ऑफरिंग के लिए जो डिजाइन किए गए थे,
और फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 8-9 वर्ष में लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं, क्योंकि इंसान तो बातों बातों में खता करता है। कितने को होली है, हम अपने अच्छे कामों से खुदा की बादशाही में नहीं दाखिल हो सकते। हमें कोई सेवियर चाहिए था, अब ना ये कुर्बानियां ना अच्छे काम, हमें कोई ऐसा बेअब बर्रा चाहिए था जो इंसान की सूरत में इस दुनिया में होता, ताकि इंसानों के लिए कफारा हो सके। भेड़ बकरियों के लिए तो भेड़ बकरियों के कफारे की कोई हमें तमसील नहीं मिलती, लेकिन इंसानों को बचाने के लिए एक बेऐब बर्रा चाहिए था जो यीशु मसीह की सूरत में इस दुनिया में आया है। और अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। और अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे अज़ीज़ों ये हमारी सारी बदकारियां अपने ऊपर ले ली हैं। सिन ऑफरिंग में कोई भी गुनाह, कोई भी गलती, चाहे हमें नहीं पता, ना जानते हुए भी हो चुकी है, खुदा की नजर में वो हर एक लड़का लड़की, मियाँ बीवी, औरत मर्द, यो उसके जिम्मेदार हैं, वो कसूरवार हैं और उनको ये चीज करने की जरूरत है। काहिन को बैल की कुर्बानी करना जरूर है, लेकिन नए हज़नामे में चूंकि खुदा ने ये सारी बदकारियां मेरे अजीजों यीशु मसीह पर लाद दी गई हैं, उसकी तहकीर की गई है, उसको घायल किया गया है, कुचला गया है, सताया गया है, फतवा लगा है, कोड़े लगे हैं, क्योंकि उसके मार खाने से मैं और आप शिफा पाते हैं। चूंकि चाहे ये काहिन का गुनाह हो, मेरे अजीजों बैल का कुर्बानी करने की जरूरत नहीं। मेरे और आपके मसीहा ने जो कुर्बानी दी है वो बैल से बढ़कर है। चाहे सरदार की हो जिसके लिए बकरे की रिक्वायर थी, बकरा कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह लैम ऑफ गॉड है, खुदा का बर्रा है, जिसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लिया है। अवाम जो है उसमें चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बकरी की कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही अल्टीमेट हमारा खुदा है, वही सरदार काहन है जिसके आगे हम सजदा करते हैं और वो हमें इंटरसीड करता है, हमारी दुआओं को, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। चाहे गरीब अवाम जिसमें कुमरियों के बच्चे हों, कबूतरों के बच्चे हों, मेरी बहन मेरे भाई, पुराने अहदनामा में मज़बा रिक्वायर करता है, लेकिन नया मज़बा यीशु मसीह का जो है वो कहता है कि तू बस ईमान ला, मेरे पास आ जा, अपनी जिंदगी रास्ते से चला, तेरे चाहे अननोन गुनाह है ऑटोमेटिकली मेरे खून से साफ हो चुके हैं, होते जाएंगे, लेकिन मुझे और आपको उसमें रहना जरूर है। और चाहे मुफलस है, कोई फकीर है, इतना गरीब है कि सिर्फ मैदा दे सकता है, अब मुझे मेरे और आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि किसकी क्या हैसियत है। हैसियत के मुताबिक कुर्बानी दे। जिसने कुर्बानी दी है उसकी हैसियत को हमारी हैसियत छू भी नहीं सकती, इसलिए चूंकि वो पाक बर्रा जो आसमानों से आया मेरे और आपके लिए गुनाह बन गया और ये सारी बदकारियां उसने अपने ऊपर उठा ली। इसलिए ये सिन ऑफरिंग जो है, चाहे नहीं पता कि हमसे गुनाह हो चुका है या पता है कि गुनाह किया है, जो ही हम उसके पास आ जाते हैं वो हाथ फैलाए हुए खड़ा है, मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया। जोरदार ताली बजाएंगे उसके इस काम के लिए कि ये छोटी बात नहीं थी। कई बार सोचते हैं कि शायद मुफ्त रास्तबाज यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो हम अब रास्तबाज हैं, गई बात जो मर्जी करते रहे। नो, इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस। आपने यीशु मसीह को कबूल किया है, आपने अपनी जिंदगी को एवरी सेकंड एवरी टाइम राइट रखने की जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कि ये वाली कुर्बानियां छोड़कर सिर्फ यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल किया जाए।